नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में और हम यहाँ की जनता से यानी कि नारियों से और युवतियों से जानने का प्रयत्न करेंगे कि दिल्ली उनके लिए किस हद तक सुरक्षित है और दिल्ली सरकार किस हद तक महिला सुरक्षा में कामयाब है। Ma'am, what is your name? Nidhi Siraj. Okay. Ma'am, what do you want to say about women's safety and how much women are safe in Delhi? For me, it's like, see, in daytime, so there is so much population around. So we always, roam around with friends only. Yesterday only, one friend of mine messaged me and said that there is no safety. Maybe there is a body found beheaded and all that. So he was like, kidnappings and all is happening. So just take care. Don't roam around in day also as well. So, and after night, after 10-11, you will see comments passing by from boys. So it's not at all safe after 10 and 11. It's always recommended. Any latest incident you want to say about something? See, I would like to share a recent incident which happened with me, and actually it happened for the first time. There was a room owner. I went to my friend's flat, so he was like, this is not a OYO room and all that. And I'm like, he is my brother, my sister and all have met, my friend. But he's like, I know what all, boys and girls do here, etc. So he's an ex-IS, I think, officer. So I'm like, how can you have such an opinion? An educated person is having that opinion is like really shameless for me. So like it disturbed me a lot, and then I'm like, then my friends recommended me this one thing only, that just do not go to somebody's flat alone. Otherwise people will think. So I was like, there can be, see, my friend, my brother, real brother, comes to me on my flat. I will lock my room or, my home. Why not? So if people have to think something, they will think on anything. Can't help. It's in their thinking only. So it's like, we all know that there is no safety of women, especially late night. You can either be with your family, then you are safe. Otherwise, so. Any suggestion you want to give government on women's safety? Yeah. See, there are many laws actually, but we say that there are no stringent laws. The laws should be implemented successfully. The implementation is the problem. Laws are there, the implementation is the problem. So they should work on that. आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाखा है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा में करनाल से हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आई थी। जब आप हरियाणा से दिल्ली आई तो महिला सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं दिखी? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ी? यहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो हमारी एज के अलावा जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़े हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं। बेसिकली रात में निकलना इट्स लाइक बहुत मुश्किल है। अगर आपको जाना भी है तो यू हैव टू गो विद, मतलब 2 या 3 इंसान के साथ ही जाया जा सकता है, बाकी रात में नहीं जा सकता। बाकी कैट कॉलिंग हो गया या फिर टीजिंग हो गया तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। जहाँ भी चाहोगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी। कोई ऐसा लेटेस्ट इंसिडेंट हो जो आप बताना चाहेंगे? लेटेस्ट इंसिडेंट यही का ही है। मैं एक बार इधर से आ रही थी लाइक 10-15 दिन पहले, तो यहाँ पर कुछ लोग थे खड़े थे, तो मैं जा रही थी तो बोल रहे थे कि अरे मैडम जी ऐसे किधर जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, ऐसी चीज़ें होती है तो बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है कि मतलब क्यों हो रही है, मतलब हम भी पढ़ने ही आ रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है। तो एक टाइम के लिए डाउट आ जाता है कि भाई बाहर जाके कैपिटल में, लिटरली कैपिटल, द रेप कैपिटल जो है, तो बहुत अजीब लगता है। तो आई थिंक अब न्यू दिल्ली को भी आपने एक नया टर्म दिया, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द कंडीशंस हियर ना, बहुत अनसेफ है न्यू दिल्ली एक्चुअली। और देखते हैं, अभी बीजेपी सरकार है तो मे बी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। वी कैन नॉट से, वी हैव टू जस्ट देखना पड़ेगा, अगर कुछ अच्छा होगा नहीं होगा तो लेट्स सी। आपका नाम क्या है? देखो, आपका नाम क्या है? ऋतु। महिला सुरक्षा पे आप क्या राय देना चाहेंगी? महिला सुरक्षा, अभी थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है इस पर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब तक लेडीज़ खुद को एकदम सिक्योर फील ना करे अंदर से, तब तक अभी और वर्क ज़रूरत है इस पर। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सुरक्षा को लेके कि ना छोटे छोटे कैंपिंग स्टार्ट करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को, जैसे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज कराने चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। जैसे पार्क वगैरह में आप देखते हैं, मॉर्निंग में पार्क वगैरह में स्टूडेंट्स भी जाते हैं, फीमेल्स भी जाती है, तो वहाँ हमें ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए ताकि हम खुद एक इंडिपेंडेंट हो सकें और अपनी बेनिफिट्स के लिए। अच्छा मैम, जब आपकी बेटियाँ या फिर आपके बहू जब बाहर निकलते होंगे जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो दिल्ली उनके लिए किस हद तक सेफ़ है? जैसे कि अभी इसने बताया कि सेफ तो मैम अभी नहीं है, अभी है, अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए हम यही कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में निकलते हैं उनको थोड़ा अवेयर करें,
सेल्फ डिफेंस से करें, या कोई ऐसे प्रोग्राम चलाकर वीकली या ऐसी वर्कशॉप चलाकर जिससे कि हम उनको और वेयर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी है वर्क करने की ज़रूरत बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। अच्छा, महिला सुरक्षा पे आपकी क्या राय है कि आपकी बहन, जब माँ बहनें घर से निकलती हैं तो वो दिल्ली पे आप किस हद तक भरोसा कर सकते हैं कि हाँ वो सुरक्षित है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले सालों से हम लगातार न्यूज़पेपर या दिल्ली की घटनाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सुरक्षा के जो प्रबंध सरकार करती है या जो हमें खुद एक पर्टिकुलर वे में एक सुरक्षित रहना चाहिए, ये हमारे घर परिवार से हमें मिलता है। अगर हमें ये लगता है खुद कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर असंवेदनशीलता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम तब एक्टिव होता है जब कोई क्राइम हो जाता है, तब वो एक्टिवेट होती है, जबकि पुलिस को पहले से ही एक्टिवेट रहना चाहिए। हाँ, अब एक नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है और डेफिनेटली जहाँ जहाँ इस तरीके की सरकारें आती हैं, अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारी सोसाइटी में समझ लीजिए कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा देना ही सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। महिलाएं भी अपने आप को एक ऐसे मोड में रखें कि हाँ, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस पर्टिकुलर एरिया में जाना है, किससे किस तरीके से बात करना है। अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं बहुत सारी दिल्ली सरकार, उस पर एक्टिव रहना है। पुलिस के माध्यम से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे प्रहार करके योजना चली हुई है, वहाँ पर बसेस में योजनाएं चल रही हैं, तो आप उनके बारे में अच्छे से जानकारी। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है पर्टिकुलर लाइफ में। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेके हम अपने घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? कि जैसे कहते हैं ना कि अगर विकास करना है तो शुरुआत अपने घर से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम अपने घर से इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत में एक समस्या है कि हम घर में कुछ और रहते हैं, बाहर कुछ और रहते हैं। बाहर के लोगों को सलाह देते हैं कि उनकी बेटियां ये कर रही हैं, उनकी बेटियां ये कर रही हैं, जबकि घर में हम जब अपने बच्चों को या बेटियों को बाहर भेजना होता है तो हम उस तरीके से नहीं रहते हैं, जो कि एक गलत फॉर्मेशन है। हमें सबसे पहले तो खुद ही एक जिम्मेदार व्यक्ति बन करके हम जान रहे हैं कि सबके लिए अपने बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को चीज़ों को बताना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें हैं एक्टिविटी में। जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें सही हैं। हमें डरना नहीं है, क्योंकि डरने से कोई काम होना नहीं है। आप डरेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जहाँ तक सवाल है आपका घर की महिला बहन बेटियों को, तो इनको हमें खुद, देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम किसी को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो उनको शिक्षित करना है और उनको ये नहीं बताना है कि सोसाइटी में डर है या इस तरीके की। हर चीज़ के लिए पुलिस प्रशासन बनी हुई है। आप उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इस तरीके के माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे, बहन बेटियां सुरक्षित थीं। लेकिन आज के समय में वहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आप देखिए, बहन बेटियाँ सुरक्षित माहौल में खुद 12 बजे 1 बजे तक अकेले आ रही हैं, जा रही हैं। तो एक सुरक्षा का माहौल सरकार को देना होता है और उसके बाद परिवार को भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी सरकार हमारे साथ है तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और घर के लोगों को ये बताना चाहिए कि हाँ, हमें ये, जैसे महिलाओं के पास एक प्री एजम्पशंस होता है कि वो पता लगा लेती हैं कि भाई इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ सही लोकेशन है वहाँ ही जाइए, जहाँ पे लाइट्स हो, रात में नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है। और जो सरकार गाइडलाइंस दे रही है उसको भी हमें पर परिवार के लोगों को, अपने बच्चे या बच्चियों को सही डायरेक्शन में बताना चाहिए। आजकल के माहौल को आप देख रही हैं, काफ़ी स्थिति गंभीर भी नहीं कह सकते, लेकिन आजकल सोसाइटी इस तरीके से हो गई है तो किसी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन है कि बहन बेटियों को हमें अपने दायरे में भी रहना है। ऐसा नहीं है कि एक डिसिप्लिन को, जो हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन बनी हुई है, डिसिप्लिन पार करोगे तो घटना आपके साथ होगी। जो ट्रेन की स्पीड 140 बनी हुई, 160 जाओगे तो दुर्घटना होगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए है कि अगर जो रूल्स बने हुए हैं उस रूल्स पे अगर मैनुअल बने रहेंगे तो घटनाएं होने कम चांस हैं और हमें उन्हें आगे बढ़ाना है। आप देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं आप, तो महिला सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। रिजर्वेशन देखिए 33% सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि सरकार भी एक्टिव है, घर परिवार को भी एक्टिव होना चाहिए, बच्चों को सही सलाह देना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं दिल्ली आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत न्यूट्रल एक्शन है यहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अपने मन को, अपनी चीज़ों को सही दिशा में, सही चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। घर परिवार को भी सही बातें बतानी चाहिए, क्योंकि किसी का भी घर परिवार किसी बात को लेकर के गलत सुझाव नहीं देता है। सर, अभी अकबर रोड पे एक लेटेस्ट इंसिडेंट आया है कि अकबर रोड का जो बोर्ड था उस पर काली पोत दिया गया है। गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल के जो कर्मचारी थे उनका कहना है कि इस रोड का जो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें पहले तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लिए बायस्ड नहीं होना है। पहले हमें अपने, जो हमारी पहले चीज़ें थीं, जो हमारे संविधान में चीज़ें लिखी हुई, हमें उसको भी मानना है। लेकिन हमें अपने जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको भी हमें नहीं भूलना है। जैसे कोई चीज़ किसी भी कालखंड में किसी दूसरे नाम से थी, उसको किसी
ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ज़बरदस्ती आकर के उसमें बदलाव ला दिया गया है। अगर हम उस चीज़ को अपने ओरिजिनल वे में ला लेते हैं तो ये देश के लिए, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर ये कोई बुरी बात नहीं है ना। समय के अनुसार किसी आक्रांता द्वारा ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए, जैसे अभी हम ही सामान्य लोग हैं, कोई ऐसी नई फॉर्मेशन है सरकार किया जाए जो हम ही लोग मारने पीटने लग जाए, 50 साल बाद ऐसी स्थिति हो जाए कि हम सब खत्म हो जाएं, कोई दूसरी चीज़ें आ जाएं, तो ऐसे परिवेश में यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार कुछ सही किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रही है जो किसी भी गलत व्यक्ति द्वारा आ करके उस चीज़ को गलत बना दिया गया है, और अगर अब हम उस शक्तिशाली एक स्ट्रेंथ में आए हैं, हम उस चीज़ को सही कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसको सही करना चाहिए। अच्छा सर, हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षा दल का कहना है कि मुगल शासकों ने हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, साथ ही उनके धर्मों को भी बदला गया। और हम NCERT की बुक्स में भी अकबर, बाबर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? जी, देखिए, एक रूल होता है राजा का। राजा जब आता है तो वो अपनी तरीके से ही कार्यशैली करता है। जैसे जब वो यंग एज में आएगा तो उसके पास ब्लड बहुत एक्टिव रहेगा, तेज़ रहेगा, वो बहुत एग्रेशन वाला काम करेगा। 2, 4, 5 साल, 10 साल वो एग्रेसिव होकर काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसे लगता है कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फिर वो न्यूट्रल होने का प्रयास करता है, सबको साथ लेने का प्रयास करता है और साथ चलता है। तो ये एक सिस्टम है इंसान का। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्रिकेट खेलना पसंद है ना, या गेम खेलना पसंद है, बड़े हो जाते हैं तो वही अपने रोज़गार के लिए आ जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं पर परिवार के लिए सोचने लगते हैं। तो बिल्कुल सेम चीज़ है। तो जो आपने अकबर वाले रोड की बात की है, किसी कालखंड में किसी आक्रांता द्वारा वो गलत निर्णय लेकर के उसको बदला गया है, तो जब हमारा समय आया है या आपका समय आया है, तो अगर हमें लगता है कि उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो बदलाव करना चाहिए। हाँ, किसी संगठन द्वारा, कोई भी संगठन, जैसे हम आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, कुछ भी हैं, हर किसी को एक अपना अधिकार है, वो किसी भी चीज़ को अपनी आवाज़ उठा सकता है, लेकिन इस तरीके का एक्ट करना कि जाकर कहीं पे काली खोद देना, इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। संविधान में इस तरीके की चीज़ें नहीं, उस पर लीगल कार्रवाई होती है। लेकिन हमें जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उस चीज़ को अगर हम किसी कालखंड में किसी गलत व्यक्ति द्वारा गलत किया गया है, उसको हम सही कर पा रहे हैं, तो उसको हमें सही करना चाहिए। इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ। तो ये थी हमारी जनता की राय। हमारी जनता का मानना है कि जब वो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आती हैं तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही ईव टीजिंग जैसी हरकतों की वो शिकार होती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे डायनामाइट न्यूज़। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा फ्री ऐप डायनामाइट न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड करें।